نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حمي وغمي اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی کلاس میں آپ اور میں تفخیم کے لیولز کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیے، اور امید ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس اس کلاس میں موجود تھے وہ پی ڈی ایف ملنے کے بعد الحمدللہ ایک بار ایٹ لیسٹ اس پی ڈی ایف کا مطالعہ کیے ہوں گے، اور امید ہے کہ جو بھی کلاس مس کیے تھے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے اس کلاس کی ریکارڈنگ کو سنے ہوں گے۔ تو کیونکہ جیسے جیسے ہم لوگوں کی کلاسز بڑھتی جا رہی ہیں، آگے بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے جو بھی لیسنس یا اسباق ہم تجوید کے سیکھتے جا رہے ہیں، بس اللہ پاک سے یہی امید اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے والے بنائیں، اس کو لیتے ہوئے اپلائی کرتے ہوئے قرآن کو صحیح طریقے سے آپ اور میں پڑھنا سیکھیں الحمدللہ۔ تو جب تک کوئی بھی استاد ہو، اسٹوڈنٹ ہو، جب تک کسی چیز کو کلاس میں سیکھے، اگر وہ اس پر پریکٹس نہیں کریں گے، اگر اس پر زیادہ غور و فکر نہیں کریں گے، یا دوبارہ جو بھی نوٹس گروپ کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں، اگر اس کا آپ دوبارہ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ پھر اگلی کلاس کے لیے تیار نہیں رہیں گے۔ تو میری یہ ذاتی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی پچھلا سبق ہوتا ہے آپ لوگوں کا، آپ یقیناً اس کو ایک بار یا دو بار جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹس نہ رہیں، اور جو بھی سبق آپ کو سکھایا جاتا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں الحمدللہ بآسانی سے بیٹھ جائے، اور آپ اس کو سمجھتے ہوئے اپلائی کر کے قرآن میں پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج انشاءاللہ ایک نیا سبق سیکھیں گے جو پچھلی کلاس میں یا پچھلے دو کلاسز میں آپ سے اس کی زبان دی تھی کہ میں آپ کو حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کیا ہے اس کا میں تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کروں گی، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ قرآن کے ذریعے سے اس کو سکھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو آج چلے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حمزۃ الوصل کیا ہے، پوائنٹ بائی پوائنٹ میں آپ کو سمجھاؤں گی، اور آپ
अगर कोई डाउट है तो क्लास के एंड में मुझे पूछेंगे, या फिर यानी कुरान के जरिए से मैं आपको वो डाउट क्लियर करने की भी कोशिश करूंगी कि बहुत आसान तरीके से एक सिंपल वे में आप और मैं हमजतुल वस्ल और हमजतुल क़त्ता को कैसे पहचानेंगे या समझेंगे। चले मैं पहले पीडीएफ शेयर कर लूं आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमजतुल वस्ल की पहचान क्या है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 9 पॉइंट्स के जरिए से मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग यानी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा हर क्लास में मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने मुसहफ को या कुरान को अपने पास में रखें, ताकि हम कुरानी एग्जाम्पल्स के जरिए से इस पर गौर फिक्र करें और समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, हमजतुल वस्ल हमेशा लफ्ज के शुरू में आता है। यानी जब भी आप और मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साइड बाय साइड आप सूरह फातिहा ही ओपन करके रख लें, ताकि मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूं और आप नजर करें कि हमजतुल वस्ल क्या है। तो हमजतुल वस्ल हमेशा लफ्ज के शुरू में आता है। यानी जैसा कि आप अगर सूरह फातिहा ओपन करें तो आप देखेंगे वहां पर एक अलिफ होगा, आलमीन। ठीक है, तो आलमीन में अगर आप और मैं देखेंगे तो आप देखेंगे रब्बिल आलमीन के दरमियान में, अगर आपके पास इंडियन मुसहफ है तो वहां पर आपको रब्बिल आलमीन एक अलिफ ऐसा दिखाई देगा जिस पर आपको कोई यानी हरकत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास उस्मानी मुसहफ है तो वहां पर आप देखेंगे कि हमजतुल वस्ल पर छोटा सा सौत का, जैसे कहते हैं ना, उसकी जो छोटी स्वाद की शक्ल बनी हुई होगी। ठीक है, छोटी सी, यानी कंप्लीट स्वाद नहीं रहेगा, बस उसका सिर रहेगा। ये उस्मानी मुसहफ में होगा, लेकिन इंडियन मुसहफ में अगर आप देखेंगे तो हमजतुल वस्ल सिर्फ अलिफ लिखा होगा, इस पर कोई हरकत नहीं रहेगी। और आप जैसा कि सूरह फातिहा में देख सकते हैं कि अगर आप देखें मान, यहाँ पे अगर स्टार्ट में देखें तो आपको एक ऐसा अलिफ नजर आएगा जो वर्ड के यानी अर रहमान के पहले है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमजतुल वस्ल हमेशा लफ्ज के शुरू में आता है। ये दरमियान में भी आपको नहीं मिलेगा और लफ्ज के आखिर में भी नहीं मिलेगा, बल्कि ये सिर्फ आपको लफ्ज की शुरुआत में मिलेगा। ठीक है, इसकी पहचान यही है। दूसरा देखेंगे कि हमेशा खाली होता है। खाली होता है का मतलब इसके ऊपर आप कोई हरकत नहीं देखेंगे। ठीक है, जबर भी नहीं होगा, पेश भी नहीं होगा, जेर भी नहीं होगी, बल्कि ये बिल्कुल आपको खाली दिखाई देगा। और लेकिन मैं बताई उस्मानी मुसहफ में यानी सिर्फ आपको सौत का सर दिखाई देगा, छोटा सा लिखा हुआ इसके ऊपर, लेकिन कोई हरकत नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, आप और मैं जिसको समझेंगे इंशाल्लाह, वो है इसके बाद लाजिमी साकिन हर्फ आता है। एक हमजतुल वस्ल की आपकी एक और शनाख्त कैसे होगी कि जब भी आपको कुरान में किसी वर्ड के सामने हमजतुल वस्ल आएगा तो उसके फौरन बाद अगर आप और मैं देखेंगे अगला हर्फ, तो अगला हर्फ साकिन वाला होगा। ठीक है, जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें अर रहमान, अर, ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं कि ये लामुत तारीफ है, तो अल को नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ये इदगामे शमसिया का लेटर है। सॉरी, इदगामे शमसिया नहीं, हाँ, इदगामे शमसिया का लेटर है रॉ, तो रॉ पे शद्दा बना हुआ है और रॉ में दो रहेंगे, दो रॉ रहेंगे, एक साकिन वाला रॉ रहेगा और एक मुतहर्रिक वाला रॉ रहेगा। और ये
हमजतुल वस्ल के बाद जो लाम आ रहा है वो पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखें कि जब भी हमजतुल वस्ल आएगा उसके बाद वाला हर्फ आपको लाजिमी साकिन वाला हर्फ होगा, जो कि इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अभी फिलवक्त बस समझ लें, ठीक है। इस पर सौत का छोटा सा मुंह बना होता है, ये जो मैं आपको बताई, ये बस उस्मानी मुसहफ में आपको दिखेगा, इंडियन मुसहफ में या पाकिस्तानी मुसहफ में यानी आपको सौत का मुंह नहीं नजर आएगा, बल्कि ये खाली रहेगा, ठीक है। ये अलिफ की शक्ल में होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं सूरह फातिहा के स्टार्ट वर्ड्स में, ये बस अलिफ की शक्ल में होता है। ये सिर्फ आयत के शुरू में या इआदा पर पढ़ा जाता है, यानी जब ये आयत के शुरू में आएगा और इससे पहले कोई हर्फ नहीं रहेगा। ये गौर गौर करने वाली बात है कि जब भी ये किसी वर्ड या किसी लफ्ज के शुरू में आएगा और इससे पहले कोई दूसरा हर्फ नहीं रहेगा, बल्कि हमजतुल वस्ल से ही वो वर्ड की शुरुआत हो रही है, तो तब हम हमजतुल वस्ल को यानी पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह मैं आगे एग्जाम्पल्स आपको मुसहफ से बताऊंगी, ठीक है। तो पढ़ेंगे और फिर हमजतुल वसल को हम दो सूरतों में पढ़ेंगे। एक, ये सिर्फ आयत के शुरू में पढ़ा जाएगा या इआदा पर पढ़ा जाता है। इआदा माने जब हम आयत पढ़ रहे होते हैं, समझिए आपकी सांस टूट गई, ठीक है, सांस टूट गई आपकी या मेरी सांस टूट गई, तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो वर्ड होगा उसे हम स्टॉप कर लेंगे, साकिन देकर स्टॉप करेंगे, या जो भी रूल अप्लाई होगा उसे उस रूल को अप्लाई करते हुए हम वो वर्ड को स्टॉप कर लेंगे। तो जब हम शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड के स्टॉप किए जाने वाले वर्ड तक के बाद वाले वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि इयादा किसको कहते हैं कि जिस वर्ड तक हम स्टॉप किए थे सांस टूटने की वजह से, तो हम उससे थोड़ा पीछे से फिर दोबारा से शुरू करेंगे, इसको इयादा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताऊंगी इसको समझने के लिए, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर है, सेकेंड वाली आयत मैं लेती हूँ आपको सूरह फातिहा की, अर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब यहाँ पे हमजतुल वस्ल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं हमजतुल वस्ल पर जबर क्यों मैंने जबर लगाकर वहां पे पढ़ा, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट में क्या बताई कि शुरुआत में अगर है तो हम इससे, अगर हमजतुल वस्ल से वर्ड शुरू हो रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे या फिर इयादा करते हुए पढ़ेंगे। कैसे इयादा करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, यानी अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुद, यहाँ पे मेरी सांस टूट गई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फिर अगर स्टार्ट करना है तो व इय्याका नस्तईन, या ऐसे नहीं स्टार्ट करूंगी, बल्कि इयादा किसको कहते हैं, मेरी सांस टूटी नाबुदू पे, ठीक है। लेकिन मैं इयादा के तौर पर क्या करूंगी, उसके पीछे वाले वर्ड से स्टार्ट करूंगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है, इसको इयादा कहते हैं। तो हमजतुल वस्ल दो सूरतों में पढ़ा जाएगा, एक अगर वर्ड के स्टार्ट में हो तो पढ़ा जाएगा, या दूसरा अगर हम कहीं पर वक्फ की सूरत में रुक गए, सांस टूटने की वजह से रुक गए, तो फिर उसके थोड़े आगे से जब स्टार्ट करेंगे वहां पर अगर हमजतुल वस्ल आ रहा है तो उसको हम पढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यही उस पॉइंट का मतलब है। और नेक्स्ट, रवानी में गिर जाता है, यानी जब भी हमजतुल वस्ल हम कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो हमजतुल वस्ल क्या होता है, गिर जाता है। जैसा कि आप यहीं पर देखें, अर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं क्या की, नून को डायरेक्टली मैं रॉ से मिला दी, ठीक है।
नून को मैं क्या की, डायरेक्टली रॉ से मिला दी। जबकि उससे पहले अगर आप देखें हमजतुल वस्ल भी है, लाम भी है। लाम तो अंडरस्टूड है, लामुत तारीफ है, और चूंकि यहाँ पे इदगाम शमसिया हो रहा है तो ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन कंटिन्यूएशन में मैं क्या की, रवानी में पढ़ते वक्त मैं क्या की, हमजतुल वस्ल को ड्रॉप कर दी, गिरा दी, इसको नहीं पढ़ी मैं। ठीक है। अगर वही मैं स्टॉप करके पढ़ती, अर्रहमान, अर्रहीम, इस तरह से पढ़ती मैं। ठीक है। लेकिन चूंकि मैं कंटिन्यू की थी, रवानी में पढ़ी थी आयत को, इसलिए हमजतुल वस्ल रवानी में गिर जाता है, पढ़ा नहीं जाता। ठीक है। वो भी मैं एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी। अब आठवां पॉइंट जो है, ये कभी लफ्ज का हिस्सा होता है, कभी नहीं होता। यानी हमजतुल वस्ल बाज दफा अब उसको मिलाएंगे तो ही वो एक वर्ड बनेगा। ठीक है, एक वर्ड बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर हमेशा जब भी कोई वर्ड हो तो हमजतुल वस्ल मिलने से ही वो वर्ड की स्पेलिंग या वर्ड होगा वो। बाज दफा हमजतुल वस्ल वहां पे सिर्फ यानी कैसे कहते हैं, एक समझिए प्रॉपर नाउन है। इसको भी मैं एग्जाम्पल्स के जरिए से आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी कि हमजतुल वस्ल बाज दफा लफ्ज का हिस्सा होता है, बाज दफा लफ्ज का हिस्सा नहीं होता। ठीक है। ये कैसे होगा, ये एग्जाम्पल्स हम यानी आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है, इस पर हरकत कायदे के मुताबिक आती है। इस पर हरकत कायदे के मुताबिक आती है, यानी हमजतुल वस्ल के बाज रूल्स हैं। ओके। तो हरकत कैसे आएगी, इस पर क्या हरकत देंगे, क्योंकि ये प्लेन होता है, इस पर कोई हरकत नहीं होती। तो अब हम इस पर जबर लगाकर पढ़ेंगे, जेर लगाकर पढ़ेंगे, पेश लगाकर पढ़ेंगे। ये कायदे के मुताबिक हमें इसे लगाना होता है, जो मैं आगे चलकर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ठीक है। या फिर अभी आप देख लें इसको, जैसा कि आप आयत नंबर 5 में यानी सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 में अगर आप देखें, नहीं आयत नंबर 5 ना लें आप, एक मिनट, आयत नंबर 6 को ले लें आप। ठीक है। आयत नंबर 6 को लें, इहदीना सिराता। ठीक है। इहदीना, यहाँ पे हमजतुल वस्ल जो फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखें तो इहदीना का जो फर्स्ट अलीफ है वो हमजतुल वस्ल है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ना आपको थर्ड लेटर रूल के हिसाब से, चले मैं आगे आपको समझाऊंगी, बस आप इतना समझ लें अब। ठीक है। हमजतुल वसल के जैसे मैं पॉइंट्स बताई आपको, इस पर हरकत कायदा के मुताबिक आती है। तो आप तीन तरह से हम हमजतुल वसल को समझेंगे कि इसकी शनाख्त या पहचान कैसे होगी। ठीक है। तीन तरीके से हमजतुल वसल की शनाख्त या पहचान होगी। वो कैसे होगी इंशाल्लाह मैं आगे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर अगर आप इस पेज में देखें तो हमजतुल वस्ल जो है, अगर हमजतुल वस्ल के यहाँ पे स्क्रीन पर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर अस्समा है, या फिर उसी को लेंगे हम वस्समा, इस तरह से। ठीक है। ये दोनों है, सेम एग्जाम्पल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप अस्समा पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे हमजतुल वस्ल यानी खाली है, इस पर कोई हरकत नहीं है। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें इसको इसी से स्टार्ट करना है, इसके सामने कोई लेटर नहीं है। ठीक है। कोई दूसरा हर्फ नहीं है, हमजतुल वस्ल से ही स्टार्ट करना है। तो आपको और मुझे एक बात को जहन में रखना है कि अस्समा में अगर आप देखें तो लामुत तारीफ आ रहा है। ठीक है। हमजतुल वस्ल के बाद लामुत तारीफ आ रहा है। तो जब भी आप कुरान में देखेंगे कि अल आ रहा है यानी लामुत तारीफ आ रहा है, तो वहां पर बगैर सोचे समझे आप और मैं हमजतुल वस्ल को जबर लगा कर ही पढ़ेंगे। ठीक है। जबर लगा कर ही पढ़ेंगे। ये क्यों ऐसे होगा, क्योंकि अगर ग्रामेटिकल वे में अगर हम समझेंगे इसको तो क्या है, जब भी कोई प्रॉपर नाउन आता है तो प्रॉपर नाउन के सामने लामुत तारीफ लगाया जाता है। अब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूं औरत,
ठीक है। अगर मैं कहूं औरत तो कोई भी औरत हो सकती है, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन हो गया, इस्म हो गया, ठीक है, इसमें नकीरा हो गया। अब मैं कहूंगी किसी औरत का नाम लेकर, मैं कहूंगी अस्मा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि अस्मा नाम की ये फलानी औरत है जिसके बारे में रुमाना जिक्र कर रही हैं, या रुमाना उसके बारे में आपको, यानी वो सामने खड़ी है जिसको रुमाना बुला रही हैं, ठीक है। तो अब हमारी शनाख्त भी कैसी होती है, अगर 5 औरतें मिलकर खड़ी हैं, अगर आपको किसी को पुकारना है तो आप वो औरतों को अगर औरत करके पुकारेंगी तो जाहिर सी बात है 5 औरतें भी आपकी तरफ मुड़कर देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो 5 औरतों के आपको नाम पता है और आप उनका नाम लेकर पुकारेंगे एक औरत का उसमें से, तो वो औरत आपको पलटकर मुखातिब होगी आपसे, तो इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। हाँ, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा, नकीरा कॉमन नाउन को कहते हैं और इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि लामुत तारीफ आ रहा है और वहां पर हमजतुल वस्ल है और उस पर कोई हरकत नहीं है, तो आपको और मुझे बिला झिझक समझना होगा कि वहां पे बगैर सोचे हम जबर लगाकर हमजतुल वस्ल को पढ़ेंगे, ठीक है। ये शर्त कब होगी, जब हम हमजतुल वस्ल से स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड को। अब वही आपको मैं बताई कि वस्समा, वस्समा, अब क्या हो गया, हमजतुल वस्ल के क्या हो गया, हमजतुल वस्ल के सामने वऊ आ गया। तो वऊ आने की वजह से क्या होगा, हम हमजतुल वस्ल को ड्रॉप कर देंगे, हमजतुल वस्ल पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि उससे पहले जो वऊ आ रहा है वऊ को हम यानी हमजतुल वस्ल के बाद वाले लेटर को मिलाते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हमजतुल वस्ल यानी रवानी में गिर जाता है, यही मैं आपको बताई। ये कैसे समझेंगे, जब भी हमजतुल वस्ल के सामने अगर कोई हर्फ आ जाए, कोई भी हर्फ आ जाए, तो हमजतुल वस्ल को पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि उससे पहले आने वाले लेटर पर जो भी हरकत होगी वो हरकत से मिलाते हुए हम हमजतुल वस्ल के बाद वाले हर्फ को पढ़ते हुए चले जाएंगे, हमजतुल वस्ल गिर जाएगा। तो ये दो तरीके हो गए, एक मैं आपको बताई, जब भी शुरुआत हमजतुल वस्ल से होगी और वहां पे लामुत तारीफ आ रहा है तो हमजतुल वस्ल पर हमेशा जबर लगेगा, ये फर्स्ट रूल था, ठीक है। सेकेंड जो है, हमजतुल वस्ल से अगर पहले अगर कोई ऐसा हर्फ आ जाए जिस पर हरकत है, तो हमजतुल वस्ल को पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि उससे पहले आने वाले हर्फ को हमजतुल वस्ल के बाद के हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। जैसा मैं बताई वस्समा, वहां पे मैं वाऊ पे जो जबर है उसको मैं क्या थी, सीन से मिलाकर पढ़कर चली गई, हमजतुल वस्ल को मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया दो, दो आपको जो समझ में आ गए। तीसरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आपको समझना है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन में कि जब भी कुरान में अफआल आए, अफआल फेल या इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं, ठीक है, वर्ब कहते हैं। या आप देखेंगे कि ये थर्ड लेटर रूल आता है, ठीक है, जब भी आप कुरान में ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो फेल हैं या वर्ब हैं, यानी एक्शन वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिससे हमें एक्शन जाहिर होता है, जैसे इद्रिब मारना, ठीक है, इत्का यानी मुत्तकी परहेजगार जिसने क्या बोलते हैं तकवा किया, इस्तवा अल्लाह ने क्या जब जमीन और आसमान को बनाए उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन को बनाने के बाद सातवें आसमान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाकर अपने तख्त पर मुस्तवी हुए, ठीक है। तो इस तरह के इहबितू, उसके बाद आप देखेंगे
तरा, स्क्रीन पर मैं इंशाल्लाह ये आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। तो जब भी आप कुरान में ऐसे वर्ड्स देखें जो एक्शन वाले वर्ड्स हों, जो आपको जाहिर करते हों कि इससे कोई काम हो रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, थर्ड लेटर रूल अप्लाई करेंगे। जैसा कि थर्ड लेटर रूल किसको कहते हैं, जब भी आप समझे इद रिब, फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखें आप स्क्रीन पर, इद रिब, ठीक है, यहाँ पे आप रॉ के नीचे जेर देख रहे हैं, यानी थर्ड लेटर है, तीसरा हर्फ है। कोई भी वर्ड में जब भी तीसरा हर्फ है, वहां पे तीसरे हर्फ पर आप अगर देखें कि उसके नीचे जो हरकत या उसके ऊपर जो हरकत है, समझे यहाँ पे इद्रिब में कसरा आ रहा है या जेर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, हमजतुल वस्ल को जेर ही लगाएंगे। ठीक है, आप हमजतुल वस्ल को क्या करेंगे, जेर ही लगाएंगे। लेकिन अगर हमजतुल, दो सूरतों में हमजतुल वस्ल को जेर लगेगा। अगर तीसरे हर्फ पर हमजत यानी तीसरे हर्फ पर अगर जेर या जबर है, तो हमजतुल वस्ल जो सामने आ रहा है उस पर जेर ही लगेगी। जबर है तीसरे लेटर पर, तो हमजतुल वस्ल को जबर नहीं लगेगी, बल्कि जबर हो या जेर हो, दोनों सूरतों में हमजतुल वस्ल पर भी जेर ही लगेगी। लेकिन अगर तीसरे लेटर पर पेश है, ठीक है, तीसरे लेटर पर अगर पेश है, तब उस सूरत हाल में हमजतुल वस्ल पर पेश लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहीं पर आप देखें। फेल के थर्ड हर्फ पर अगर जबर या जेर हो, तो हमजा वस्लिया को जेर दी जाती है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में जेर मिलेगा हमजतुल वस्ल को। लेकिन फेल तो हमजा वस्लिया को पेश दी जाती है। जैसे उदखुल, उस, ये बहुत यानी छोटा है, इंशाल्लाह मैं जब आप पीडीएफ सेंड करूंगी आपको। उस जुदू, जीम पर जीम पर पेश है, तो आप हमजतुल वस्ल को पेश लगाएंगे, उस जुदू। ठीक है, इसी तरह से उशदुद, उशदुद, उसकूनू, उसकूनू, क्योंकि काफ पे पेश है तो हमजतुल वस्ल पर पेश लगेगी। सिंपल इतना ही आपको और मुझे समझना है, और कुरान में इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे। ओके, कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं आपको कुरान में भी इसको इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अगर आप देखें, इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमजतुल वस्ल के बारे में जो पॉइंट्स हम मैं और आप समझे, इतना तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए होंगे। बस इतना याद रखें कि हमजतुल वस्ल वर्ड के स्टार्ट में आता है, और वो अलिफ होगा, उस पर कोई यानी जेर जबर कोई हरकत नहीं होगी। बस उस्मानी मुसफ में उस पर आप देखेंगे कि सौत का छोटा सा मुंह बना हुआ होगा, और उसके बाद में आप इसको तीन तरीके से पढ़ेंगे। जब भी आपको लामुत तारीफ आएगा, तो हमजतुल वसल पर जबर ही लगेगा। ठीक है, और अगर हमजतुल वस्ल यानी आपको किसी फेल के सामने आएगा, तो हमजतुल वस्ल पर थर्ड लेटर रूल अप्लाई होगा। तीसरे हर्फ पर जबर या जेर है, तो हमजतुल वस्ल को जेर ही लगेगी। अगर तीसरे हर्फ पर पेश है, तो हमजतुल वस्ल को पेश लगेगा। और एक बात आप और मैं क्या सीखे, अगर हमजतुल वस्ल के पहले कोई हर्फ आ गया, तो हमजतुल वस्ल को गिरा दिया जाएगा, उसको पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप और मैं समझ गए। अब इसमें एक थोड़ा एक्सेप्शन है जो आपको और मुझे समझना है। कुरान में 5 अफ़आल ऐसे हैं जिनमें थर्ड हर्फ पर पेश है, लेकिन इनमें हमजा वस्लिया को जेर दी जाती है। यानी कुरान में 5 ऐसे फेल हैं, फेल माने वर्ब, जो मैं बोली एक्शन वर्ड कहते हैं इसे। ठीक है, यानी ऐसा वर्ड जिससे आपको मालूम होता है कि काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है वहां पे। ठीक है, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, लिखना, कूदना, खेलना, खाना, नहाना, कुछ भी ऐसा। ठीक है, ऐसा वर्ड जिससे कोई काम होने का हमें मालूम होता है। ठीक है, किसी काम के होने का हमें मालूम होता है।
तो कुरान में बस 5 ऐसे फेल या 5 ऐसे आपको वर्ड्स बोलिए, आपको यानी ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो आकर आपको यानी वहां पर ये एक्सेप्शन है। 5 ही हैं ऐसे कुरान में, और आप इंशाल्लाह इसको मार्क करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिक्र किया गया है उसका एग्जाम्पल्स के जरिए से कि कौन से सूरे में ये 5 अफ़आल आते हैं, ये 5 वर्ब्स आते हैं, जिस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर थर्ड लेटर पर आपको पेश होगा, लेकिन आपको यहाँ पर पेश लगाकर पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि आपको हमजतुल वस्ल को जेर ही लगाना है। ये हफ्सुन आसिम की रिवायत है। अब ये क्यों ऐसे है, क्या है, इसकी बहस में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सूरे सौद की आयत नंबर 6 में आप देखेंगे इमशु, इमशु, ठीक है। शीन पर पेश है, लेकिन हमजतुल वस्ल पर आप क्या करेंगे, जेर ही लगा हुआ होगा, और जेर के साथ ही इसको इमशु पढ़ेंगे, उमशु नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुरान में सिर्फ 5 ऐसे वर्ब्स हैं। और नेक्स्ट जो है आप देखेंगे सूरत तौहा की आयत नंबर 64 में ईतू, ठीक है, ईतू, इसकी थोड़ी गहराइयां हैं जो मैं आपको क्यों ऐसे होता है इसकी यानी गहराई में जाकर मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। बस आप अपने मुस्तहफ में मार्क करके रखें और वहां पर लिख दें कि ये थोड़े एक्सेप्शनल 5 ऐसे कुरान में वर्ब्स हैं, या लिख कर रख लें किसी किताब में, ठीक है। नेक्स्ट जो है सूरतुल यूनुस की आयत नंबर 71, जिसमें आपको आएगा इक़दू, इक़दू, ठीक है। इस पर भी आप देखेंगे कि हमजतुल वस्ल पे कसरा लगा हुआ है, हालांकि थर्ड लेटर रूल के हिसाब से यहाँ पर पेश होना चाहिए था हमजतुल वस्ल पे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं, इसीलिए यहाँ पे जेर लगा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखें सूरतुल कहफ की आयत नंबर 21 में इब्नू, इब्नू, ठीक है। और लास्ट जो है सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 65 में इमदू, इमदू, ठीक है। यहाँ पे ये 5 ऐसे एक्सेप्शनल हैं जिन पर हमजतुल वस्ल यानी पेश होना चाहिए था थर्ड रूल के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे जेर लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें अस्मा, यानी अस्मा किसको कहते हैं, इंग्लिश में नाउन को कहते हैं। नाउन किसको कहते हैं, यानी कोई भी चीज, जैसे समझिए नाम है, क्या क्या कहेंगे, किसी का नाम है, या फिर कोई चीज का जिक्र जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जिसको एक्ट यानी नेम, नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग, या किसी का कोई जगह का नाम, किसी चीज का नाम, या आपका खुद का नाम, इसको अस्मा कहा जाता है, इस्म कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी अस्मा में हमजा वस्लिया को हमेशा जेर दी जाती है, ठीक है। जब भी कुरान में इस्म आएंगे तो वहां पर वो इस्म को हमेशा जेर दी जाएगी, ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पर इस्म पहले ही है, नाउन है, इस्म माने नाम, ओके। अगर एग्जैक्टली आप इसको देखने जाएं, इस्म माने नाम, नाम को कहते हैं, तो जेर लगी हुई है। नेक्स्ट अगर आप देखें इब्नी, इब्नू, जो भी हो, इसको जेर लगी होगी, ठीक है। इब्न माने बेटा। नेक्स्ट जो है इस्तिगफार, इस्तिगफार, ठीक है, यानी इस्तिगफार करना। नेक्स्ट जो है इमराता या इमरातुन, किसको कहते हैं, औरत को कहते हैं, एक औरत को कहते हैं। अगर थोड़े एक से ज्यादा औरतें हैं तो उनको अन्निसा कहेंगे अरबिक में, ठीक है। अन्निसा, जैसे सूरतुन निसा है जो औरतों के लिए वक्त किया गया है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों के लिए नुज़ूल किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसले मसाइल का जिक्र है, ठीक है। तो इमरातुन यानी एक औरत को कहा जाता है। और अब और एक क्लास जो है यहाँ पे इस्नतैन, इस्नतैन, ठीक है, इस तरह का। नेक्स्ट अगर आप देखें हुरूफ में सिर्फ लामे तारीफ के शुरू में हमजा वस्लिया होता है, उसको हमेशा जबर दी जाती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि जब भी कुरान में आप लामुत तारीफ देखेंगे, यानी प्रॉपर नाउन के सामने
क्या इसको मारिफा जो मैं बताई आपको, प्रॉपर नाउन लामुत तारीफ यानी अली अल आएगा, अल ही लामुत तारीफ है ना, लामल खमरिया या लाम शमसिया भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे तो वहां पर बाकायदा हमजतुल वस्ल पर जबर ही लगेगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप लोग हमजतुल वस्ल को समझ गए होंगे। अब चलें, आप और मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझ लेंगे। सूरतुल बकरा उठा लें आप लोग, ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको ये समझाती हुई चलूं, ठीक है। सूरतुल बकरा उठा लें, पहली आयतों से ही ले लें आप, ठीक है। तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 अगर आप देखेंगे, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 अगर आप और मैं देखेंगे, तो ये स्टार्ट ही हो रहा है अल्लज़ीना, ठीक है। अल्लज़ीना, यहाँ पर अगर आपके पास इंडियन मुसहफ है तो आप देखेंगे कि अलिफ पर कोई हरकत नहीं है और सौत का मुंह भी नहीं है, ठीक है, सौत का मुंह भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि आपको बताई कि जब भी लामुत तारीफ आएगा तो वहां पर बाकायदा जबर लगेगा, इसीलिए मैं इसको अल्लज़ीना पढ़ी, इल्लज़ीना या उल्लज़ीना नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लामुत तारीफ आ रहा है तो हमजतुल वस्ल को हम जबर लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी आयत में आप देखें वयुकीमूना स्सलाता, ठीक है, वयुकीमूना स्सलाता, यहाँ पर आप देखें युकीमूना स्सलाता, वहां पे नून जबर ना के बिल्कुल बगल में आप देखेंगे हमजतुल वस्ल है। क्योंकि मैं रवानी में पढ़ रही हूं तो मैं क्या की, हमजतुल वसल को ड्रॉप कर दी और नून जबर ना की हरकत को डायरेक्ट मैं सौत को लेकर चली गई, हमजतुल वसल को मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि हमजतुल वस्ल जब भी स्टार्टिंग में आएगा तो ही पढ़ा जाएगा या इयादा करते हुए पढ़ा जाएगा। जब भी हमजतुल वस्ल के सामने अगर कोई हर्फ होगा तो हमजतुल वस्ल को हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको ड्रॉप कर देंगे। अब अगली आयत में ऐसे ही आप देखें वल्लजीना, वल्लजीना, यहाँ पे भी चूंकि आयत वाउ से स्टार्ट हो रही है तो मैं क्या की, हमजतुल वस्ल के अलिफ को ड्रॉप कर दी, ठीक है, ड्रॉप कर दी और मैं डायरेक्टली वाउ को लाम से मिलाते हुए पढ़कर आगे चली गई। बस इतना ही हम लोगों को समझना है। चलिए आप लोगों को बता दूं, जी, आप जैसा कि स्क्रीन पर अगर देखें, मैं आपको बताई कि जब भी हमजतुल वस्ल आएगा तो आप देखेंगे कि उस पर छोटा सा सौद बना होगा उस्मानी मुसहफ में। जैसा कि आप यहाँ पर देखें पहली ही आयत में इन्नल्लज़ीना, यहाँ पे इन्नल्लज़ीना, इन्ना नूने मुशद्दद के बाद आप देखें हमजतुल वस्ल है, उस पर आप छोटा सा देखें स्वाद का सिर बना हुआ है या समझे स्वाद का मुंह बना हुआ है, ठीक है, यही हमजतुल वस्ल है। उस्मानी मुसहफ में ऐसा लिखा होगा, लेकिन वही आप इंडियन मुसहफ में देखेंगे इस पर कोई निशान नहीं रहेगा, ये खाली रहेगा, ठीक है। तो रूल के हिसाब से, कायदे के हिसाब से आपको इसको जबर जेर या पेश जो भी है वो लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे और आगे इसी आयत में देखें बिल आखिरह, बिल आखिरह, यहाँ पर भी आप देखें बिल, बिल में मैं क्या की, बाजिर बी को लाम साकिन से डायरेक्ट मिलाकर पढ़ ली। रेशमा ये शायद पता नहीं मुझे कौन सा सूरा, मैं अर्जेंट में अब जस्ट बस आपको, कोई बात नहीं, ये तो हर जगह पे आपको उस्मानी मुसहफ में, बस मैं ऐसे ही रैंडमली एक क्लिक करके आप लोगों को समझाने के लिए बस मैं इसकी पिक्चर पकड़ ली। तो यहाँ पर आप देखें कि इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, ठीक है। बी में देखें आप, उसके फौरन बाद बी, बाजिर बी के फौरन बाद आप हमजतुल वस्ल देख रहे हैं, वहां पर आपको छोटा सा सौत का निशान लगा हुआ है, ठीक है, यही आपको हमजतुल वस्ल है। तो कंटिन्यूएशन में क्या हुआ, मैं हमजतुल वस्ल को नहीं पढ़ी बल्कि उसको ड्रॉप कर दी, लेकिन वही अगर हमजतुल वस्ल वर्ड के स्टार्ट में आएगा
تو ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ اگر الف لام آ رہا ہے، لام التعریف آ رہا ہے، تو حمزۃ الوصل کو زبر لگائیں گے. لیکن اگر لام التعریف نہیں آ رہا ہے، اب اسی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں پھر تاکہ آپ سمجھیں. تو وہاں پہ آپ اور میں کیا کریں گے، تھرڈ لیٹر رول لگا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک منٹ. اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 32 میں دیکھیں، آپ تھوڑا آپ کی اسکرین میں انلارج کر لیں اگر ہوا. میں کاؤنٹ کر کے آپ کو آیت بتا دیتی ہوں. 10ویں آیت دیکھیں آپ، یعنی 10ویں لائن دیکھیں، آیت نہیں 10th لائن دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، 10th لائن دیکھیں. اس میں آپ کے پاس کیا ہے، بیمان تقا، بیمان تقا. ٹھیک ہے، کیونکہ نون آ رہا ہے، نون زیرنی حمزۃ الوصل سے پہلے، تو میں حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دی. اب سمجھیے میری سانس یہاں پہ ٹوٹ گئی. فار این ایگزامپل میں تھوڑا آگے سے پڑھ کر آؤں گی. فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ، بیمن پہ سمجھیے میری سانس فار این ایگزامپل ٹوٹ گئی. اب میں سمجھیے میں نیکسٹ ورڈ سے سٹارٹ کروں گی، تو میں کیا کروں گی، حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگاؤں گی، اتقا. ٹھیک ہے، کیوں میں زیر لگاؤں گی، کیونکہ حمزۃ الوصل پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور وہاں پہ لام التعریف یعنی ال بھی نہیں ہے، تو یہاں پر تھرڈ لیٹر رول اپلائی ہوگا. تو میں کیا کروں گی، اس کے تھرڈ لیٹر کو دیکھوں گی، آف کو دیکھوں گی. ٹھیک ہے، آف پہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں اتقا میں زبر ہے. ٹھیک ہے، زبر یا فتحہ ہے. تو میں کیا بتائی، جب بھی تھرڈ لیٹر پر زبر یا زیر ہوگا تو میں حمزۃ الوصل کو زیر ہی لگاؤں گی. ٹھیک ہے، تو تھرڈ لیٹر رول کے مطابق یہاں پر میں زیر لگا کر اس کو کیسے پڑھوں گی، اتقا، اتقا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں سمجھنا ہے. الحمدللہ. اب اگر آپ اس کو اور سمجھنا چاہیں گے تو آپ سورۃ الفجر اٹھا لیں، میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ، اس میں آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. سورۃ الفجر اٹھائیں آپ، اما پارا کا سورہ جو ہے. سورۃ الفجر، سورہ نمبر 89، 80 پر 9، 9واں سورہ سورۃ الفجر. ٹھیک ہے، سورۃ الفجر کے آپ دیکھیں گے آیت لاسٹ یعنی 28ویں آیت دیکھیے، 20 پر 8ویں آیت یا 28ویں آیت دیکھیے. سورۃ الفجر سورہ نمبر 89 اما پارا کا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 28 دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، اس پر اگر آپ دیکھیں یہ سٹارٹ ہی ہو رہا ہے کس لیٹر سے، حمزۃ الوصل سے. اب حمزۃ الوصل پہ وہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے بلکہ یہ پلین ہے. تو آپ اور میں کیسے سمجھ کر پڑھیں گے کہ یہاں پر کیا لگا کر پڑھنا ہے، اس کو میں سمجھاؤں گی 3 طریقے سے. اگر یہاں پر حمزۃ الوصل سے پہلے سمجھیے واو ہوتا یا کوئی اور یعنی لیٹر ہوتا تو میں کیا کرتی، حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دیتی اور میں کیا کرتی، اس پہلے لیٹر سے بعد والے را کو ملا کر پڑھ لیتی. لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہاں پر لام التعریف یعنی یہ ورڈ جو ہے یہاں پر 20 پر 8ویں آیت کا پہلا ورڈ، یہ الف لام سے بھی شروع نہیں ہو رہا ہے، لام التعریف سے بھی شروع نہیں ہو رہا ہے. اگر لام التعریف سے شروع ہوتا تو میں کیا کرتی، یہاں پر زبر لگا کر پڑھتی، لیکن وہ بھی نہیں ہے، اب صرف الف بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، خالی الف ہے. تو میں اب یہاں پہ کیا کروں گی، اس کے تھرڈ لیٹر کو دیکھوں گی اس ورڈ کے. اب یہاں پر تھرڈ لیٹر کیا ہے، تھرڈ حرف کون سا ہے، جیم ہے. ٹھیک ہے، جیم ہے. اب جیم کے نیچے کیا ہے، زیر لگی ہوئی ہے.
تو میں آپ کو کیا بتائی، جب بھی تھرڈ لیٹر میں زیر یا زبر ہوگی تو ہم کیا کریں گے، حمزۃ الوصل کو زیر ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے، تھرڈ لیٹر پر اگر زیر ہو یا زبر ہو، دونوں صورتوں میں ہم کیا کریں گے، حمزۃ الوصل کو زیر ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں اس کو کیسے پڑھوں گی، ارجعی، ارجعی، اس طرح سے زیر لگا کر میں اس کو ارجعی اس طرح سے پڑھوں گی. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ وہی اگر میں کنٹینیو کر کے پڑھوں گی اس کو تو کیسے پڑھوں گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، یعنی میں کیا کی، تو کو کیا کی، ڈائریکٹلی را کو ملا دی، حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دی. لیکن یوزلی ہم اس آیت کو ایسے نہیں پڑھتے، سٹاپ کرتے ہیں پھر ارجعی سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. تو چونکہ ارجعی سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ حمزۃ الوصل پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے اور تھرڈ لیٹر پر زبر یا زیر ہو تو حمزۃ الوصل کو زیر لگا کر پڑھیں گے. لیکن وہی اگر یہاں پہ تھرڈ لیٹر یعنی جیم پر پیش ہوتی تو میں حمزۃ الوصل کو پیش لگا کر پڑھتی، اور کیسے پڑھتی، اور اس طرح سے پڑھتی. امید ہے آپ لوگوں کو حمزۃ الوصل سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، پوائنٹس وائز میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی، اسی لیے میں پوائنٹس 9 پوائنٹس اس کے آتے ہیں تو میں لکھی، لیکن قرآن میں آسانی سے سمجھنے کے لیے بس الحمدللہ اتنا ہی ہے کہ یہ لفظ کے شروع میں آئے گا اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگی. بس عثمانی مصحف میں ایک چھوٹا سا صاد کا سرا بنا ہوا ہوگا، انڈین اور پاکستانی مصحف میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو قاعدے کے مطابق اس یعنی حرکت یہ میسج کی وجہ سے بار بار میری آواز سٹک ہوتی ہے. یا اللہ، قاعدے کے مطابق نا اس پر آپ کو زبر، زیر یا پیش جو بھی لگانا ہے وہ دیکھیں گے. تو قاعدہ کیسے ہوا، کس کو کہتے ہیں قاعدہ، اگر لام التعریف آئے تو حمزۃ الوصل پر زبر ہی لگے گا، اگر حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی حرف آئے گا تو حمزۃ الوصل کو گرا دیا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. لیکن لام التعریف بھی نہیں ہے، حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی لیٹر بھی نہیں ہے، حمزۃ الوصل سے ہی پڑھنا شروع کرنا ہے، تو حمزۃ الوصل کو کیا دیں گے، ہم تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے. اگر تھرڈ لیٹر پر زبر یا زیر ہے تو حمزۃ الوصل کو زیر لگائیں گے، اگر تھرڈ لیٹر پر پیش ہے تو حمزۃ الوصل کو پیش لگا کر پڑھیں گے. الحمدللہ، امید ہے آپ لوگوں کو حمزۃ الوصل سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں سوچی تھی آپ کو آج حمزۃ الوصل کے ساتھ حمزۃ القطع بھی سمجھا دوں گی اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، لیکن دیکھیے وقت کیسے یعنی گزر جاتا ہے بس. لیکن وقت گزرنا کوئی بات نہیں، یا کلاس میں زیادہ سے زیادہ پورشن کور کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا. میرا مقصد یہ ہو کہ کم لوں لیکن آپ کو سمجھاتے ہوئے چلوں. ٹھیک ہے، یعنی ٹیچر سبق بہت زیادہ دے رہے ہیں، بہت زیادہ پڑھا رہے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ کے بالکل کیا بولتے ہیں دماغ میں نہیں چڑھا تو ایسا سبق سکھانے کا کیا فائدہ، اور خود مجھے سیکھنے کا کیا فائدہ جب میرے اسٹوڈنٹ سمجھے ہی نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے، اگر دنیاوی سبق ہے اس میں بعض سیکھ لیے بعض نہیں سیکھے، ٹیچر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ دینی علم ہے، اگر میں پڑھاؤں اور آپ لوگ اس کو سمجھیں ہی نہیں، اپلائی نہیں کریں قرآن میں، تو ایسا علم میں آپ کر دیکھ کر کیا کروں جو آپ کو فائدہ ہی نہ پہنچائے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانے کی کوشش کرتی ہوں، قرآن کے ذریعے سے مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اچھے سے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں یہاں تک آج کی کلاس سٹاپ کروں گی. اگر آپ کو اس کے مطابق کوئی اس کے ریلیٹڈ سوالات ہوں تو آپ مجھے پوچھ لیں. الحمدللہ، تو نیکسٹ کلاس میں ہم حمزۃ القطع کو سیکھیں گے. حمزۃ القطع اگر سٹارٹ کروں تو بہت وہ بھی لمبا وقفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں نہیں شروع کروں گی، بس آپ اتنا آج اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو ریکارڈنگ مبینہ سے آپ سٹاپ کر لیں، اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ سے کچھ سوالات اگر ان کے ہوں تو میں پوچھ لوں ان سے.